Good morning, everyone. And today, as I told you yesterday, and you saw it on the yesterday's vlog, that I was planning to move out of this place today, and now I'm almost ready to go. So I thought I should just begin the video now, and let me show you around that how I have packed everything. Just give me a sec. So here, my Prabhuji has is going to be with me in the bag, and this is one bag which I'm going to carry. That's another phone. That's one luggage which is ready to go. These are 3 water bottles with me, one handbag. Rest everything has been cleared, and I am ready to move. I'll just move out. Hi. And what I'll do is I'll just move out and actually block the cab and say bye to this room and go to a place where we are going for some time. So as I was telling you that I am moving out, so I am already in the cab, as you can see, and I'll be reaching to that spot in another 15 minutes. Post that, I'll show you around, and accordingly we'll take it forward. See you soon. Good evening, everyone. First of all, I'm really sorry that I couldn't continue the entire thing on the same day when I moved here. So, because I got a call from office, and I actually left very quickly after just putting my stuff here, got dressed and went to work. And that night I came really, really late, and it was yesterday. So I came back from work somewhere around 11 in the night, and then I actually didn't have any strength to share anything. So let's continue from there till today. So this was the outfit which I was wearing for the work today. Ignore those chappals I was wearing, in fact those heels. But now, since you know, after wearing heels for the entire day you get tired, so I just quickly changed into chappals. But I thought I should show you what I'm wearing. So I'm sorry again. So this dress is from Azitos, which is the local brand at Bangalore, and the blazer which I'm wearing is from Zara. The neck piece, which you can see, it is from a local market, Janpath in Delhi, and the shoes which I was wearing were from M&S, and the watch I was wearing, which I'll show you that too, which I've just kept, is from this one. This is from Mark and Jacobs. So, and yeah, let me just first, sorry, I thought अभी तक तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर बात कर रही थी, तो ज़रूरत नहीं पड़ी. अब कैमरा घुमा देते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. मेरी फर्स्ट एक तो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, प्लस देन आई एक्चुअली पुट वन मोर वीडियो ऑन यूट्यूब विच वॉज माई day 1 हियर. सो उसको मुझे पता है बहुत ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं, विच इज़ फाइन, बट बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी गुड विशेस मुझे भेजी इंस्टाग्राम पे. और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप सब लोगों ने बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेजेस पे बहुत सारा गुड लक भेजा, और बहुत सारा आई वुड प्रेफर टू से कॉन्फिडेंस दिया कि दैट आई शुड डू दिस, एंड आई विल बी डूइंग जस्टिस टू actually moving towards YouTube, and I will bring some great content. I'm not sure, I'm not that confident as of now, but I will try my best that I can do something good with it. अभी तो मैं ऑफिस से अभी वापस आई हूँ. टाइम मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में ना ऐसे घड़ी नहीं है, तो आई हैव टू एक्चुअली और मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं फ़ोन पे देख नहीं सकती हूँ. टाइम इज़ 9, it's almost 9:45 now, and what I was looking forward to do now, पहले तो मुझे लगा था कि चलो अब ऑफिस से आ गए हो, सब काम हो गया है, जस्ट आई शुड स्लीप नाउ. अब नहीं लग रहा मुझे वैसा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं काम करती हूँ. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आप लोगों ने ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक. उन सबको आंसर कर देती हूँ अभी यहाँ पे एक वीडियो पे, बिकॉज हालांकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को पर्सनली आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूँ, बट नहीं कर पाई बिकॉज आज दिन बहुत हेक्टिक था, और आई थिंक कल बहुत लेट हो ही गई थी, मैंने आपको बताया ही था, बट कल काफ़ी मैसेजेस आए थे मेरे पास. कुछ के तो मैंने वहीं पे जवाब तभी के तभी दे दिए थे, लाइक व्हेन आई वाज इन द कैब मूविंग टूवर्ड्स वन ऑफ माई
गेस्ट लोकेशन. सो वो वहाँ पे काफ़ी के आंसर कर दिए थे मैंने, बट कुछ अभी भी बचे हैं और मुझे लगा था कि उनको मैं यहाँ पे बैठ करके आंसर करूँगी. तो मुझे थोड़ा सा इतना लिखना या टाइप करना या टेक्स्ट करने में मज़ा नहीं आता, तो मैंने सोचा मैं बात करते करते आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ. सो ओके, गिव मी 2 minutes, आई चेंज, फ्रेशन अप एंड लेट्स सिट डाउन. सो लाइफ इज़ सो फनी समटाइम्स कि आपसे ना छोटी छोटी, अच्छा रैंडमली मैं बीच में इसलिए ऐसे आ गई हूँ क्योंकि मैं अभी मैंने आपको जैसा बोला था मैं चेंज करके फ्रेशन अप होने जा रही हूँ. तो मैंने तभी रियलाइज़ किया कि मेरा जो व्हाट यू कॉल इट, जो भी कहते हैं इसको, आप खुद देख के समझ गए होगे. तो कल ये मैंने ख़रीदा था अपने वॉशरूम में रखने के लिए, टू यू नो फिल जो इसका रेगुलर यूज़ है हैंड वॉश भरने के लिए. देन आई रियलाइज्ड कि ये एक ऊपर से घुमाते हैं तो खुल जाता है ना ये पंप, ये वाला पोर्शन, ये वाला. हाँ, तो ये कल रात को करीब 20 से 25 मिनट लगे होंगे मुझे, मैं इसे घुमाती रही बट ये नहीं खुला. एंड आई वाज लाइक कि हो सकता है इसका अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, इसे भी हम यहाँ रख देते हैं और मैं आपसे बात कर लेती हूँ. और तो इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा नहीं, और मैं खोलने की कोशिश करती रही बहुत देर तक, बट फिर मैंने गिव अप कर दिया. और गिव अप करने के बाद मैंने सोचा था चलो कल दूसरा खरीद लेंगे. पूरा दिन आज और मैंने सोचा था कि नया ले लेंगे कल, क्योंकि ये तो खराबी है क्योंकि खुल ही नहीं रहा है. इतना छोटा सा काम है, बस घुमाओ ही खुल जाता है. तो फिर मैंने इसके ऊपर गिव अप किया, मैंने इसे टेबल पर पटका और मैं जाके सो गई. और अभी मतलब आज सुबह में मैंने उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया. आई वेंट टू वर्क और अभी आके वापस जब मैं अंदर जा रही थी हाथ धोने के लिए, तब मैंने सोचा कि एक बारी इसे खोल के देख लेती हूँ. और मैंने अब खोला और ये एकदम से खुल गया. सी हाउ लाइफ इज. और अब हम यहाँ पे खड़े ही हैं और मेरे हाथ में चाबी हुई है, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ. वेट, आई शो यू द वेदर आउट हियर. इट्स सो अनप्रडिक्टेबल. अभी तक तो आपने देखा था कि इतनी गर्मी हो रही थी और सब कुछ हो रहा था, और अभी आप देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है. सो इट्स एब्सोल्युटली अनप्रडिक्टेबल. अब वापस चलते हैं. तो अब मैं वापस आ जाती हूँ. और मेकअप से कितना फ़र्क पड़ता है ना, हम लोग बंदे का चेहरा कैसे बदल जाता है. अभी जब तक मैंने मेकअप किया हुआ था तो आई वॉज लुकिंग सो शार्प एंड ऑल, और अब देखो जरा जैसे मेकअप उतरा तो अब मैं आलसी लगने लग गई हूँ. एनीवेज, अभी टाइम दिखाती हूँ मैं आपको. टाइम हो गया है 10:20. यू कैन सी 10:20. मैं लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था तो इट वॉज ऑलमोस्ट 9:45. आई हैव चेंज्ड नाउ. आई विल टेक व्हाट आई विल डू इज आई विल रीड द क्वेश्चन एंड आई विल आंसर देम अकॉर्डिंगली. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मैं फेसबुक वाले क्वेश्चंस को आंसर कर देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. या सो सबसे पहले तो मेरे फादर के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे गुड लक बोला था, तो थैंक यू अंकल. हालांकि मैंने उनको वहाँ जवाब दे दिया था, बट मैं इससे शुरू करना चाहती थी बिकॉज ब्लेसिंग्स, लव एंड अब बड़ों का प्यार बहुत मैटर करता है. सो जैसे मैं बता रही थी कि क्वेश्चन अंकल के क्वेश्चन को तो मैं आंसर कर चुकी हूँ. एंड नाउ लेट्स मूव टू सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस एवरीबडी हैव सेंट. सो वेयर हैव यू मूव्ड? वेल, बिकॉज ऑफ पर्सनल प्राइवेसी रीजंस एंड पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस, और मैं अपनी फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए ये चीज़ अभी नहीं बताना चाहती हूँ. बट आई कैन ओनली टेल यू दैट आई एम इन इंडिया ओनली. इट्स नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि अच्छा तो तेरा वीज़ा आ गया और हैव यू मूव्ड टू अ सर्टन लोकेशन, विच दे वर अवेयर बिकॉज दोज गाइज आर फैमिली फ्रेंड्स. तो उनको पता था मेरे कुछ प्लान्स के बारे में. बट नहीं, मैं इंडिया से बाहर मूव नहीं किया है, मैं इंडिया में ही हूँ. और कुछ अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से और अपनी पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हुए मैं अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू मूव्ड विद योर हस्बैंड? हस्बैंड तो मिल जाए पहले, फिर मूव करेंगे. और हस्बैंड ऐसे मिल जाएगा मतलब मैं शांति से शादी कर लूँगी, ऐसा नहीं होने वाला. मैं शांति से शादी नहीं करूँगी, सबको पता चलेगा. Where you work, company name. So as I've mentioned in my introduction video also, and it is mentioned in my description, my channel description as well. So I work for a 5-star, it's a luxury brand hotel, and company name I would not like to disclose. वैसे कर तो सकते. I work for Hilton, and
I'm sure by the name you will be able to guess it that it's a hospitality company and I work for them. And एग्जैक्ट होटल मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इज़ इट अलाउड फॉर ऑल ऑफ अस टू शेयर दैट और नॉट. दैट्स द बिगेस्ट रीजन दैट आई एम नॉट शेयरिंग द एग्जैक्ट नेम. So next question is, why YouTube? Are you also trying to become rich content creator? अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. YouTube तो मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अभी थोड़ा टाइम है और मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, सो दैट आई थिंक और आई गेट इमोशनल लेस अबाउट मूविंग आउट ऑफ माई होम. बिकॉज मैं इस बारी जो आई हूँ ना, मैं चाहती नहीं थी कि मैं रोऊँ, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आई थी और मैं यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके गई थी तो मैंने बहुत रोया था. ऑलमोस्ट मैं हर शाम को या हर रात को बैठ कर रो लेती थी. तो मैं वो नहीं करना चाहती थी इस बारी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ और शुरू कर लेते हैं एंड आई कीप माई सेल्फ बिजी. तो मेरे को वो सब चीज़ें कम याद आएंगी तो मैं कम रोऊंगी और ये इस बार का जो ड्यूरेशन है वो अच्छा निकलेगा. और रिच उसके लिए पहले फॉलो तो करो, ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे और ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, तब जाके कहीं मोनेटाइज होएगा. अभी थोड़ी हो रहा है. Since now I have become very rich after creating this YouTube channel, let's move to the next question. Why to move in that part of the city? It's extremely expensive and you will be hardly home. So कहीं भी रह लो. So ये जिसने ये क्वेश्चन भेजा है वो मेरी स्कूल फ्रेंड है और टू बी ऑनेस्ट मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी आप लोगों से एंड दैट वाज द रीज़न दैट आई थॉट दैट आई शुड इंक्लूड दीज सम क्वेश्चंस इन द वीडियो ऑल्सो. एंड क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप लिख करके किसी को नहीं समझा सकते और ऐसे मुझे 3 या 4 क्वेश्चंस आए थे कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिटी क्यों रहने की कोशिश कर रही है, तू थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रह ले या तू थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तू कुछ कर ले. सो मैं आप सबको मतलब जो भी आज नहीं तो कल कोई भी किस तरह की वीडियो देखे और या इस वीडियो को देखे तो एज आई वाज सेइंग कि कई लोगों ने ये बात बोली, मुझे सजेस्ट भी किया था कि उधर या आई वुड प्रेफर टू से बहुत सारा एरिया है इस सिटी के इस स्टेट के अंदर कि तू मूव कर सकती है या उसके बाहर रहेगी तो कम पैसे खर्च होंगे. इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू लिव इन दिस सिटी. सो अब मैं 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर एक बात बोलना चाहती हूँ और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ क्योंकि ना ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनका ना अपना एक जीने का तरीका होता है और वो उस तरह के लाइफस्टाइल में सरवाइव कर लेते हैं और मैं उसको लेकर के कभी किसी को जजमेंट नहीं पास करना चाहती हूँ क्योंकि हर एक की अपनी ज़िंदगी है और हर एक की अपनी स्ट्रगल है. वो उसको अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहते हैं, किस तरफ ड्राइव करना चाहते हैं, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, एब्सोल्यूट पर्सनल चॉइस. और मेरा मानना है कि आपको ना बहुत ज़्यादा, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सेविंग्स के, बट मैं बहुत ज़्यादा ना ये भी नहीं चाहती हूँ ना कि मैं अपने आप को तकलीफ़ दे करके और अपने आप को परेशान रख करके ज़िंदगी जीऊँ और पैसे बचा लूँ. एट द एंड ऑफ द डे मेरी हेल्थ और हेल्थ में फ़िज़िकली एज वेल एज मेंटली दोनों के बारे में बात कर रही हूँ. अगर जो मेरी हेल्थ सही नहीं है और मैं पीस में नहीं हूँ और मैं खुश नहीं हूँ तो चाहे मैं कितने भी पैसे बचा लूँ उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है. इट्स वेरी मैं कल एक वीडियो देख रही थी तो उसमें सदगुरु जी एक बात बोल रहे थे कि तुमने कभी किसी मरे हुए इंसान को देखा है, वो एक डेड बॉडी लेटी होती है, तुम उसके कान में जाके ये बोल दो कि मैं तेरे लिए $1 million लाया हूँ तो वो तब भी नहीं हिलेगा, वो एक्साइटेड भी नहीं होगा. सिमिलरली आप चाहे उसको गोल्ड ऑफर कर दो, चाहे उसे कुछ भी ऑफर कर दो, वो नहीं हिलेगा. तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, चाहे वो पैसे हों चाहे कुछ भी हो, वो सब तब तक ही मैटर करते जब तक आप जिंदा हो, उसके बाद वो मैटर नहीं करेंगे. तो मेरी सेविंग्स ऑफ कोर्स आई विल फोकस ऑन माई सेविंग्स और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करूँगी जो शायद मैं पहले कभी नहीं करती थी. तो मैं और वो मेरे लिए अगर जो मैं उनको करूँ तो उनसे मेरी हेल्थ पे या मेरी मेंटल हेल्थ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर पैसे सेव करने की कोशिश करूँगी और yes, it's in my agenda that I will try and save money also, but मैं ऐसी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगी जो मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट करे, जो मेरी खुशी को इफ़ेक्ट करे. क्योंकि अब
बहुत सारे पैसे सेव कर लो, बीमार हो गए, मुझे कुछ हो गया, या एनीथिंग कैन हैपन टू एनी बॉडी, एनी बॉडी जैसे नॉट एनी बडी वाला, तो उन सब पैसों का क्या ही होगा, वो पैसे यहीं रखे रह जाएंगे, कोई और ही बरत रहा होगा उन्हें। और मेरे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करती हूँ। मेरे पास टू बी ऑनेस्ट बहुत कम शौक हैं और जिन पे मैं पैसे खर्च करना पसंद करती हूँ। सबसे पहला शौक उसमें है मेरे कान्हा जी के लिए कपड़े खरीदना और बहुत सारी चीज़ें खरीदना, बट करंटली सिंस वो अभी बैक होम मॉम और डैड के पास हैं, तो मैं अभी उनके लिए चीज़ें भी नहीं खरीद पाऊँगी, तो वो एनीवेज पैसे बच ही रहे हैं। उसके अलावा मेरा एक और शौक है कि मैं जहाँ पे रहूँ ना वो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग होना चाहिए। आई एम ए लिब्रन, मेरी राशि है जो लिब्रा, उसके अंदर की ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि उनको ना हर चीज़ सुंदर और प्लेजेंट पसंद होती है। तो मेरे अंदर है वो क्वालिटी कि मैं जहाँ पे रहूँ, चाहे वो मेरा घर हो चाहे कुछ भी हो, इट शुड लुक प्रिटी एंड इट शुड लुक वेरी क्लीन। मैं साफ चीज़ें होनी चाहिए और आपके आंखों को देख के सुकून मिलना चाहिए, स्ट्रेस नहीं। मैं उस पर बहुत फोकस करती हूँ। सो इट्स एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो और आप कैसे रहना चाहते हो। तो मैं इसके लिए किसी को जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है, तो उनको पता होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट है, पर मेरी ज़िंदगी में ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको इसके ऊपर अपने पैसे खर्च करना चाहूँगी। और मैंने अपने पेरेंट्स से बात की थी और उन्होंने जब इस चीज़ को अप्रूव किया तभी मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया और उसकी पेमेंट करी। बट आई कैन अंडरस्टैंड, हर किसी की अपने रीजंस हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं, तो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ और मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इट्स एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस। और मैंने सब कुछ जो भी किया है मैंने बहुत ही सोच समझ के किया है और मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके किया है। मैंने कोई ऐसी रैंडमली चीज़ें नहीं उठा के कर दी। चलो बहुत बातें हो गई, अभी दूसरे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैन यू डू अ डे एट होटल वीडियो? हाँ, वो मेरे चेकलिस्ट में है। आई विल डेफिनेटली डू दैट वेरी सून, बट गिव मी सम टाइम, क्योंकि अभी मेरे को बात करनी है चार से, एंड अकॉर्डिंगली विल डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्किन लुक नाइस, क्या कुछ कराया क्या? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया है। हाँ, एक फेशियल कराई थी, वो विच इज़ वेरी नॉर्मल विच एवरीबडी डू, और बाकी सब मेकअप का कमाल है और कुछ नहीं है। मैं और पता है कि यहाँ पे ना लाइटिंग बहुत अच्छी है, और नॉट ओनली यहाँ पे, जहाँ पे मैं पहले रह रही थी ना, तो वहाँ पे भी लाइटिंग बहुत अच्छी थी। तो बहुत सारी चीज़ें ना सुंदर लगने लग जाती हैं कैमरा में लाइटिंग की वजह से। इट्स नथिंग एल्स। I know you since childhood. Your hair look nice. Share your hair styling and care video. इतनी प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ मैं अभी कि मैं ये सब कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई एंड शो यू दी प्रोडक्ट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होटल का कमरा तो दिखा दिया था, अब घर भी दिखा दो। जल्दी करती हूँ मैं ये रूम का टूर भी, और उसका वीडियो शेयर कर दूँगी बहुत जल्दी, बट जल्दी तो नहीं, शायद सैटरडे या संडे में करती हूँ ना, उस दिन ऑफ होएगा, तो आई विल हैव टाइम टू शो यू अराउंड एंड टेल यू अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन ऑफर्ड इन दिस एंटायर थिंग। Next question is, how much rent you paying? Well, it's on the little higher side, but includes lot of service. And to be if you are looking forward to have a exact number, so मैं क्या करूँगी ना, आपको स्पेशली वो लिंक भेज दूँगी। मैं आपको जानती नहीं हूँ, आपने वो वीडियो देखी होगी शायद, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे वो मैसेज भेजा, तो मैं काम करूँगी, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे, अपने दोनों जगह पे भेजा हुआ है। मैं दोनों जगह पे ना आपको लिंक भेज दूँगी। मैं जिन के साथ रह रही हूँ, जिनके साथ रह रही हूँ से मेरा मतलब है जिस कंपनी के थ्रू मुझे ये अकोमोडेशन मिली है, मैं उनका लिंक आपको भेज दूँगी। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी एंड यू विल, आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सर्विस। दे हैव अ लॉट ऑफ सच अकोमोडेशन ऑप्शंस अक्रॉस द सिटी एंड you will love it.
ये पर्टिकुलरली इस सिटी से ही है वो ब्रांड भी, और ये सारी जितनी भी अकोमोडेशन सर्विसेज हैं वो सब की सब इसी सिटी में अवेलेबल है. सो यू विल बी एबल टू नो कि आप कितनी ऑप्शंस देख सकते हो. इसमें इकोनॉमिकल रेट्स में भी हैं, बट वो कुछ थोड़ा बाहर की तरफ हैं. दे आर नॉट इन द सिटी सेंटर एरिया. तो आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे बुक कर सकते हो. जितना मुझे पढ़ के वेबसाइट पे समझ आया था, तो आई कुड फिगर इट आउट. 17 to 18 लोकेशंस हैं सिटी के अंदर जहाँ पे ये वाली सर्विस अवेलेबल है, एंड इट्स वेरी गुड. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी गुड. और लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके रेंट्स हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की चीज़ें समझ आ रही हैं. देन यू कैन फिगर आउट द रेंट ऑल्सो अकॉर्डिंगली. The next question is, have you moved with family? No, my family is still back at my original place. I am here all alone because of my personal choices. Also because of my personal, I have a job here personally, तो इसलिए यहाँ पे हूँ मैं. कितना पर्सनल बोल दिया मैंने इस वाले को. इंस्टा पे लाइव आ जाओ और आंसर कर दो. नहीं, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझ में कि मैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे आकर के लाइव आकर के आप सब लोगों के क्वेश्चन आंसर इतना नहीं कर पाऊंगी अभी. सॉरी बट मे बी लेटर विद टाइम. फिर दीदी एनी ओपनिंग फॉर किचन टीम. मैंने आपका एक क्वेश्चन पढ़ा था. करंटली तो अभी कोई खास ओपनिंग नहीं है किचन टीम में, बट मैंने शेफ़ को बोल दिया था. तो शेफ़ बोल रहे थे जब भी ओपनिंग आएगी तो ही विल टेल मी एंड आई विल शेयर दैट ओपनिंग विद यू एज वेल. Next question is, does hoteliers get paid so well because you look rich? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं. एंड आई डोंट लुक रिच और एनीथिंग. मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ लाइटिंग का कमाल है और मेकअप का कमाल है, नथिंग एल्स. वी गेट पेड डिसेंटली एंड वी आर सर्वाइविंग, और बाकी सब कुछ आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव वेरी गुड पेरेंट्स कि उन्होंने मेरा लाइफ स्टाइल इतना अच्छा रखा है कि आपको ऐसा लग रहा है, बट कोई रिच विच नहीं है. नॉर्मल हूँ मैं, मिडिल क्लास, एकदम मिडिल क्लास. दीदी होटल के बारे में Q&A सेशन करो. अब Q&A सेशन, मुझे Q&A सेशन करने का मन था. इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कि कैसे शुरू करूँ. आई एम वर्किंग ऑन इट. गिव मी सम टाइम, लेट मी प्लान दैट वीडियो एंड विल डू अ Q&A सेशन फॉर श्योर. और मैं एक सीरीज़ के लिए भी अभी होमवर्क कर रही हूँ. लेट्स सी हाउ मच टाइम इट गोना टेक. उफ, मैं थक गई. अब बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया, बहुत नहीं करने का मन है. इनफैक्ट कुछ बचे हुए हैं. मैं जब टाइम मिलेगा या जब मैं कैब में होती हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूँगी. अब मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं सोच रही थी एक और वीडियो शूट कर लूँ. मेरे को एक दिमाग में कंटेंट चल रहा था, तो आई वांटेड टू डू दैट, बट अब नहीं करूँगी. बहुत देर हो गई है. और कल रात को भी मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सो पाई थी. मुझे दिन में नींद आ रही थी. एंड उससे पहले वाली रात को आई वॉज नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल एंड दैट वेल, तो मैं उस रात को भी नहीं सो पाई थी. और अभी काफ़ी लेट हो गया है, अराउंड 11:20 टाइम हो रहा है, तो अब मैं सोती हूँ. और मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में. मोस्ट प्रॉब्ली अब मैं डेली कोशिश करूँगी, चाहे मैं छोटी वीडियो डालूँ, बट आई पोस्ट अ डेली वीडियो. सो सी यू टुमारो विद अ फ्रेश वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. बाय, गुड नाइट.